So good morning, everyone. In last session, we have seen what is distance, what is displacement, okay? And in this session, we will see what is uniform motion, what is non-uniform motion, okay? So consider an object moving along a straight line. Let it travel 5 meters in the first second, 5 meter more in the next second, 5 meter in the third second, and 5 meter in the fourth second. So one object is moving, okay? So in 1 second it has traveled 5 meter. In second it has traveled again 5 meter. In third second also 5 meter. In fourth second also 5 meter, okay? In this case the object covers 5 meter in each second. So in each and every second the object is covering 5 meters, okay? So as the object covers equal distances in equal intervals of time, so every 1 second it is the interval of time, okay, the object is covered the exact equal distance, okay, every second it is covering 5 meter. That means in every second in exact interval of time it is covering the equal distance, okay? So it is said to be in uniform motion. So we can say that the object is in uniform motion, okay, because in it is covering equal distance in equal intervals of time. Every second it is covering 5 meter, that is वो equal distance में equal time cover equal time में equal distance cover करता है, right? So we can say that the object is in uniform motion. The time interval in this motion should be small. In our day-to-day life, we come across motions where objects cover in unequal distances in equal intervals of time, okay? For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, these are some instances of non-uniform motion. तो क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो होता है बट द डिस्टेंस कवर्ड सेम नहीं होता है, राइट? तो फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग ऑन अ बाइसिकल, बराबर, हम बाइसिकल पे कहीं पर जा रहे हैं बेटा, और फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर पासिंग थ्रू द क्राउडेड एरिया वी विल raise our speed or decrease our speed, बढ़ाएंगे और घटाएंगे, write in your chat box, right? So we will decrease our speed, not raise, barabar. But when the road is clear, then that time we can travel in some more speed, right? So that time our motion is non-uniform motion, क्योंकि equal interval of time में equal speed नहीं रहती है. So that's why it is a non-uniform motion, okay? तो कोई कार भी जा रही हो, कोई बस जा रही हो, so when there is no traffic, it can travel very fast. वो स्पीड में ट्रैवल कर सकती है, राइट? सो दैट टाइम you can see it is traveling fast, and when there is a crowded area, market area है, तो वहां पर उसको स्लो ड्राइव करना पड़ता है, राइट? सो दैट टाइम उसकी स्पीड लो होती है. सो इट इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, जॉगिंग का भी एग्जांपल है. जब आप जॉगिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल द स्ट्रेट लाइन जॉगिंग कर रहे हो, तो आपकी शायद स्पीड यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, थक जाते हो तो स्पीड कम हो जाती है. एज वेल एज जब टर्न आता है, राइट, तो तब भी हमारी स्पीड कम हो जाती है. तो इट इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, हियर the data regarding the motion of two different objects A and B are given in table 8.1. Examine them carefully and state whether the motion of the object is uniform or non-uniform. चलो यहाँ पर देखते हैं. Table 8.1. Time is given. बराबर, what is the duration of time? 9:30 है first one, second one 9:45 है, third one 10 है. कौन कितना duration है बेटा? Time का interval कितना है? Very good. कितना टाइम इंटरवल? वेरी गुड, 15 मिनट्स का. ओके, तो एवरी 15 मिनट्स वी विल चेक व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर, बराबर. तो जो ऑब्जेक्ट ए है, बराबर, वो मीटर में कितना डिस्टेंस करता है एवरी 15 मिनट? 10 मीटर. ओके, अगेन 20 मीटर, 15 मिनट के बाद 20 मीटर, 30 मिनट के बाद अगेन 15 मिनट ज्यादा करो तो इट विल बी 30 मीटर, देन 40 मीटर, 50. So it is in uniform motion or not?
because at every 15 minutes it is covering 10 meter distance. So it is in uniform motion or not? Yes, it is in uniform motion. Now we will see about object B. So in first 15 minutes, okay, that is 9:30, the object is at the 12 meter. After 15 minutes, it covered 7, right? 7 meter. Very good. And it is at 19 meter. चलो अगेन कितना कवर किया 19 के बाद? 5 मीटर. वेरी गुड. उसके बाद आफ्टर दैट 23 and 35, 12 meter. Very good. Then again 2 meter only. Then chalo 4 meter. Very good. And 3 meter. Okay, so the object is in uniform motion or non-uniform motion? Okay, it is in non-uniform motion because at equal time intervals it is not cover the equal distance. बराबर? So it is in non-uniform motion. Now measuring the rate of motion. तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ओवर के बॉलिंग स्पीड दी है 1 ओवर की, बराबर? तो फर्स्ट जो बॉल डाला इस ओवर में, फर्स्ट बॉल में उससे 140 की स्पीड है, देन 143, 135, 145, 132 एंड 130, बराबर? अब रिगार्डिंग दिस हम देखेंगे कि इसकी जो एवरेज जो है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन वो कैसे हम देख सकते हैं. सो लुक एट द सिचुएशंस गिवन इन पे टेबल 8.2. इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर इन फिगर 8.2a, व्हाट डज इट मीन? बोलो क्या है इसका मतलब? Bowling speed is 143 kilometer per hour. That means the ball is in the speed in which it can cover 143 kilometer in 1 hour. Understood? क्या बोल रही हूं मैं? स्पीड उसका मतलब क्या होता है कि वो बॉल 140 किलोमीटर कर सकता है एक आवर में. एक आवर में इट कैन कवर 143 किलोमीटर. अंडरस्टूड? what do you understand from the signboard in figure 8.2b? चलो इससे क्या होता है? ये साइन बोर्ड से क्या आप कह सकते हो? बोलो. फर्स्ट का मैंने बोला, सेकंड का बहुत ही इजी है बेटा. राइट इन योर चैट बॉक्स. यस, स्पीड लिमिट. बट क्या है स्पीड लिमिट? वो तो दिखता है, ऊपर लिखा हुआ है. द कार कैन ट्रैवल ऑन दिस पाथ at the speed 50 kilometer per hour and the heavy vehicle, that is the truck, can travel on this path by 40 kilometer per hour. मतलब इस रास्ते से कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा सकती है और ट्रक जो है वो 40 किलोमीटर, बराबर? उसकी स्पीड लिमिट क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर ऑन दिस पाथ, बराबर? सो इजीली वी कैन अंडरस्टैंड इट, राइट? So different objects may take different amounts of time to cover a given distance. बराबर? For example, मुझे यहाँ से 5 किलोमीटर अवे जाना है. If I am using bicycle, right? The distance is same. बराबर? Distance same है, 5 किलोमीटर ही जाना है. If I am using bicycle, बराबर? तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा. या if I am using my 2-wheeler, बोलो, एक्टिवा या एक्सेस यूज करूंगी उसमें ज्यादा टाइम लगेगा. बताओ. Bicycle. Very easy, right? So different object may take different amounts of time to cover given distance, right? तो मैंने दो अलग अलग बाइसिकल भी यूज किया एज वेल एज मेरा 2-व्हीलर भी यूज किया, तो डिस्टेंस कवर तो सेम रहा लेकिन टाइम टेकन अलग हो गया. दूसरा एग्जांपल, दोनों टाइम में मैं बाइसिकल यूज करती हूँ. फॉर एग्जांपल मैं 2 बार गई, दोनों टाइम बाइसिकल यूज की. फर्स्ट टाइम में गई सुबह 7 o'clock, तो रोड बहुत ही क्लीन था तो इजीली मैं पहुंच गई स्पीड से. लेकिन मैंने 10 o'clock मैंने स्टार्ट किया तब बहुत क्राउडेड था, बराबर? भीड़ बहुत ज्यादा थी, व्हीकल्स ज्यादा थे, तो आई हैव टेकन मोर टाइम. सो सी डिस्टेंस कवर तो सेम ही है बट टाइम टेकन अलग है. अंडरस्टूड? सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली. द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट, बराबर? ऑल्सो तो उसका रेट जो होता है मूव करने का वो डिफरेंट हो सकता है ऑब्जेक्ट का, बराबर? ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट. तो ऐसा भी हो सकता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जांपल मैं 2-व्हीलर लेके जा रही हूँ एज वेल एज अगर आप में से कोई है जो मेरे साथ आ रहा है बाइक लेके, बराबर? तो ऑब्जेक्ट दोनों ही अलग अलग है, बराबर?
समझ सकते हो ना, दोनों ऑब्जेक्ट अलग है, मैंने भी अलग लिया है, उसने भी अलग लिया है, बराबर। तो उसमें क्या होगा, चलो अगर हम सेम स्पीड से जाएंगे तो, राइट, तो वो दोनों भी सेम स्पीड से जा सकते हैं और अपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, राइट, अंडरस्टूड एवरीवन। तो ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि आप जाओ, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट और टाइम इंटरवल सेम हो, बराबर, सेम वे आप अलग अलग टाइम पे भी पहुंच सकते हो, 5 किलोमीटर आपको अलग टाइम में भी कवर कर सकते हो, सेम टाइम में भी कवर कर सकते हो, विथ डिफरेंट स्पीड ऑल्सो यू कैन कवर, अंडरस्टूड एवरीवन। okay, one of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time, बराबर। तो अभी इसका इलाज क्या है, हम कैसे रेट ऑफ मोशन ढूंढ सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट का, तो वन ऑफ द वेज of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time। तो दिए हुए फिक्स टाइम में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, right, and we referred it as a speed, right, this quantity is referred to as speed, उसे हम speed बोलते हैं। तो distance cover upon time taken, that means in a unit time the object has covered how much distance, it is called speed, understood। Once again, distance covered by an object in unit time, it is called speed, understood everyone। किसी को प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक स्पीड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ओके फाइन, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, राइट, ओके। तो द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल m into s raised to -1, s raised to -1 उसको हम बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड, राइट। द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर, ओके। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, चलो स्पीड को दिखाने के लिए हमको एक ही चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज मैग्नीट्यूड, बोलो मैग्नीट्यूड। हमने लास्ट सेशन में देखा था बेटा मैग्नीट्यूड, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, वेरी गुड प्रगति, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल इफ आई बॉट 5 kg एप्पल, तो 5 it is a magnitude and kg it is a unit, understood। तो here also if the speed is 20 kilometer per hour, बराबर, तो 20 is a magnitude, न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसका यूनिट है किलोमीटर पर आवर, बराबर। 50 मीटर पर सेकंड रखा है तो 50 इट इज अ मैग्नीट्यूड एंड मीटर पर सेकंड इट इज अ यूनिट, ओके, अंडरस्टूड नाउ। द ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, बराबर। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट, बराबर, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पीड उसकी कांस्टेंट रहे, ज्यादा हो कम हो व्हाटएवर, हमको तो एवरेज स्पीड लेनी है, तो सभी स्पीड का अपने पर यूनिट टाइम का प्लस करने का डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना उसने टोटल ट्रैवल किया दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट, अपॉन टाइम टेकन, अंडरस्टूड। therefore we describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed। तो इसलिए हम मोस्टली बराबर क्या करते हैं कि रेट ऑफ मोशन कैसे गिनते हैं, एवरेज स्पीड से, वेरी गुड। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, बराबर, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ अपॉन टाइम टेकन, अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके हम कार लेके निकले, 1 आवर तक ट्रैवल किया, बराबर, या तो 50 मिनट तक ट्रैवल किया, आफ्टर 50 मिनट इफ आई रीच 50 किलोमीटर, तो मेरा स्पीड क्या हुआ, 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 50 मिनट, राइट, बराबर, समझ में आता है ना बेटा। तो मेरी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हुई, बराबर। हमें एग्जांपल आता है, बहुत ही इजी एग्जांपल है, वी विल सी। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस s, डिस्टेंस को s लिखा हुआ है, इन टाइम t, then the speed v is equal to s upon t, बराबर, distance cover upon time taken। Let us understand this by an example। A car travels a distance of 100 kilometer in 2 hours। तो कार ने कितना ट्रैवलिंग किया, 100 किलोमीटर,
कितने टाइम में? 2 आवर्स में, बराबर। सो इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर आवर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 2, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हुई बेटा? 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। So the car might not have traveled at 50 kilometer per hour all the time. That means उसने पूरे रास्ते में 50 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल नहीं किया होगा, कहीं पर 70 किलोमीटर भी होगा, कहीं पे 30 किलोमीटर पर आवर भी होगा, उसकी स्पीड 30 भी होगी, 20 भी होगी, 50 भी होगी, 70 भी होगी, 90 भी होगी, बट द एवरेज इज, उसने एवरेज कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? तो 100 किलोमीटर। कितने टाइम में? 2 आवर में। तो एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। Okay, sometimes it might have traveled faster and sometimes slower than this. कभी फास्ट भी चली होगी, कभी स्लो भी चली होगी, बट द एवरेज इज 50 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड एवरीवन? किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है बेटा? एवरीवन? वेरी गुड। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है बेटा, सभी लोग ध्यान रखना, बराबर। इट इज वेरी गुड, फाइन। चलो यहाँ तक ओके है आप लोगों का। चलो नाउ नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल देखेंगे बेटा उसका। तो ये इस एग्जाम्पल से तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा ये फंडा, राइट। तो एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 60 मीटर इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में कितना ट्रैवल करता है? 60 मीटर। एंड देन अनदर 60 मीटर इन 2 सेकंड। अगेन दूसरी 2 सेकंड में 60 मीटर ट्रैवल करता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो वेरी इजी, फर्स्ट हम क्या करेंगे? दोनों डिस्टेंस को टोटल कर देंगे, दोनों टाइम को भी टोटल कर देंगे, राइट। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 60 मीटर प्लस 60 मीटर, बराबर। पहले 60 मीटर 4 सेकंड में कवर किया था, सेकंड 60 मीटर 2 सेकंड में, तो दोनों का मैंने टोटल कर दिया, इट इज 32 मीटर। नाउ टोटल टाइम टेकन, तो फर्स्ट कितना टाइम लिया था? 4 सेकंड, एंड देन इट हैज टेकन 2 सेकंड, तो 4 + 2 6 सेकंड। नाउ मुझे टोटल डिस्टेंस भी मिल गया एंड टोटल टाइम टेकन भी मिल गया, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो 32 डिवाइडेड बाय 6, तो इट विल बी 5.33 मीटर पर सेकंड। क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो द यूनिट इज मीटर पर सेकंड। therefore the average speed of the object is 5.33 मीटर पर सेकंड। बोलो, सबको पता चल गया बेटा? एनी प्रॉब्लम? हाँ, एनी प्रॉब्लम बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? वेरी गुड, वेरी इजी, राइट। नाउ स्पीड विथ डायरेक्शन। तो अभी तो हमने देखा कि स्पीड हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, राइट। नाउ वी विल सी स्पीड विथ डायरेक्शन, कि डायरेक्शन की भी जरूरत हो, ऐसा कब होता है, राइट। तो द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed, बराबर। तो हम ऐसे मोशन भी है कि जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं विद द डायरेक्शन द स्पीड, दैट स्पीड को भी मोशन, उसका मैग्नीट्यूड भी जरूरी है एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी जरूरी है, बराबर। स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विथ इट्स स्पीड, को स्पीड के साथ उसका डायरेक्शन भी। बट्टी अक्षा बेटा, आप क्यों ऐसे उसके ऊपर डिस्टर्ब कर रहे हो स्क्रीन के पर? बेटा तने લીટા પાડવા મજા આવે છે અક્ષા? બટ્ટી અક્ષા, where is she? Don't do this, okay? आप यहाँ पर सब डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ पर दिख रहा है बेटा आपका नाम, राइट। तो डोंट डू दिस, okay? This quantity that specifies both the speed as aspects is called वेलोसिटी। मतलब स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों ही स्पेसिफाई किया हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो किसी भी डेफिनेट डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, बराबर, तब उसकी स्पीड इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, बराबर। तो यूनिफॉर्म हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, बराबर। यूनिफॉर्म दैट मींस एक सेम सी, वेरिएबल दैट मींस इट कैन बी चेंज्ड। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाए तो वेलोसिटी में भी चेंज आता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ, बराबर। या तो डायरेक्शन चेंज कर लो तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और बोथ दोनों ही चेंज कर लो, दैट मींस स्पीड भी चेंज करो एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज करो, तब भी वेलोसिटी चेंज
हो सकती है, राइट? तो once again velocity of the object can be changed by the object speed, direction of motion or both. तो अगर स्पीड चेंज की जाए या तो डायरेक्शन चेंज की जाए या तो दोनों चेंज किया जाए, तो इन दैट केस द वेलोसिटी कैन बी चेंज. When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. बराबर? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, बराबर, एट अ वेरिएबल स्पीड, मतलब अलग अलग स्पीड पे, बराबर, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी. तब हम उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर. उसकी एवरेज वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी पड़ती है. जैसे कि स्पीड में हमने देखा कि 5 किलोमीटर अवे जाना है, तो हर टाइम हमारी स्पीड अगर अलग अलग है, बराबर, तो उस टाइम पे हम एवरेज स्पीड लेते हैं. तो हियर ऑल्सो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा हो और उसकी स्पीड अलग अलग हो, तब हम वी कैन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, बराबर. अंडरस्टूड एवरीवन? इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड. जिस तरह से आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हो, उसी तरह से आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू total distance traveled. Very good. in बोलो क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. आपने जिस जगह पर गए हो उसको क्या बोलोगे आप? फाइनल पॉइंट, राइट? और आपने कहां से स्टार्ट किया था? इनिशियल पॉइंट. वेरी गुड. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी plus final velocity divided by 2. Understood? In case the velocity of the object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity. मतलब जब उसने स्टार्ट किया तब उसकी स्पीड क्या थी और जब वो फाइनल पॉइंट पे पहुंचा तब उसकी स्पीड क्या थी, राइट? सो इट इज अ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ओके, इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बराबर. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. तो मैथमेटिकली वी कैन टेक इट v, बराबर. v के नीचे आपको av लिखना है. av का मतलब है एवरेज. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, प्लस v, इट इज फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, बराबर. where v average is the average velocity, u is the initial velocity and v is the final velocity of the object. Speed and velocity have the same units, that is मीटर पर सेकंड, बराबर. और अगर आप किलोमीटर में लेते हो, किलोमीटर पर आवर. अंडरस्टूड एवरीवन? बराबर. जनरली हम वेलोसिटी का यूनिट लेते हैं मीटर पर सेकंड. बोलो यहां तक सबको पता चला? एनी प्रॉब्लम? ओके. अभी एक बहुत ही सिंपल आपको बता देती हूँ बेटा. एवरेज स्पीड जो है, बराबर, एवरेज स्पीड वो हम किसकी लेते हैं पता है आपको? डिस्टेंस में, राइट? और एवरेज वेलोसिटी किसकी ली जाती है पता है आपको? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट की ली जाती है, राइट? डिस्प्लेसमेंट जब लेते हो तब आप एवरेज वेलोसिटी लेते हो. अंडरस्टूड एवरीवन? बराबर. तो बहुत ही इजी है बेटा, ये याद रखना सब और नोट डाउन करते रहना. एग्जाम्पल आज का जो करवाया है प्लीज नोट इट डाउन इन योर साइंस नोटबुक, बराबर. चलो नाउ यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है. चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं. द ओडोमीटर. ओडोमीटर क्या है सबको पता है बेटा? ओडोमीटर 8th स्टैंडर्ड में आया, 7th में आया था आपको ओडोमीटर. अच्छा, आपकी एक्टिवा, बाइक या तो गाड़ी, उसके ऊपर जो एक मीटर रहता है जो आपको स्पीड दिखाता है, राइट? इट इज ओडोमीटर, स्पीडोमीटर जिसको बोलते हैं आप, राइट? द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट. तो जब कार को स्टार्ट किया गया उसका इनिशियल क्या रीडिंग था? 2000 किलोमीटर, राइट? एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप पे जा रहे थे, सबसे पहले दिखा 2000 किलोमीटर ऑडोमीटर पे, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, बराबर. तो फाइनल का क्या आया? 2400 किलोमीटर और इनिशियल क्या था? 2000 किलोमीटर, राइट? इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, टोटल कितना टाइम लिया? 8 आवर. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड. बहुत ही इजी है ना? आएगा?
चलो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार कितना हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो फाइनल कितना रीडिंग मिला था हमको s इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर। कितना ट्रैवल किया है कार ने, 400 किलोमीटर, बराबर। 2400 में से आपने 2000 माइनस कर दिया, रीडिंग आपका 2000 पहले से ही था और आपने ट्रैवल करने के बाद 2400 हुआ, तो 2400 माइनस 2000 इट इज 400 किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस कवर मिल गया आपको। चलो टाइम टेकन क्या है, 8 आवर, वेरी गुड। तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू, बोलो, v एवरेज इज इक्वल टू s अपॉन t हुआ, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन, तो 400 डिवाइडेड बाय 8 इट इज 5 किलोमीटर पर आवर। वेरी इजी ना, पता चला बेटा, 5 किलोमीटर पर आवर, बराबर। चलो अभी यहाँ पर एक और किया हुआ है कि 50 किलोमीटर पर आवर, सॉरी हाँ 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, क्यों 1000 मीटर किया, बोलो, वेरी गुड, बराबर। क्यों किया 1000, बोलो फटाफट, क्योंकि मुझे किसमें ढूंढना है, मीटर पर सेकंड में, बराबर। सी हियर, स्पीड आपने किलोमीटर पर आवर में तो ढूंढ ली बेटा, इट इज 50 किलोमीटर पर आवर, बट इन क्वेश्चन ऑल्सो मेंशन दैट यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड ऑल्सो, बराबर। तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज इन किलोमीटर, तो मीटर को मैं कन्वर्ट करने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1000। सेम वे, बराबर, आवर्स जो है उसको मुझे कितना, 1 आवर है उसको डिवाइड सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आई हैव टू डिवाइड विथ 3600 सेकंड। 1 आवर मतलब कितनी सेकंड हुई, 3600 सेकंड, बराबर। कैसे हुई, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट की सेकंड कितनी, तो अगेन मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो इट इज 3600, बराबर। तो द आंसर विल बी 13.9 मीटर पर सेकंड, बराबर। तो द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड 13.9 मीटर पर सेकंड। अंडरस्टूड, दोनों यूनिट में हमने ढूंढ लिया है। किसी को प्रॉब्लम है इस एग्जाम्पल में बेटा, anyone have any problem in this example? Okay, so this example also you have to write in your notebook. मैं again 8.3 example करवा रही हूँ, वो भी you have to write in your notebook, 8.1, 8.2 and 8.3. Okay, तो उषा swims in a 90 meter long pool, बराबर, 90 मीटर लंबा एक पूल है, उसमें स्विमिंग कर रही है। She covers 180 meter in 1 minute, बराबर। तो उसने 180 मीटर कितने में कवर किया, 1 मिनट में, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक एंड से दूसरे एंड तक गई, बराबर। एंड शी कवर्स 180 किलोमीटर इन 1 मिनट, बराबर। देन बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, बराबर। तो 180 किलोमीटर कैसे हुआ, 90 किलो सॉरी मीटर कैसे हुआ, 90 मीटर का तो पुल है, तो गई और आई, तो 180 मीटर हो गया, उसने 1 मिनट में इतना कवर किया, राइट। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा, वेरी इजी, इजीएस्ट एग्जांपल। चलो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 मिनट इज 180 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इज इन 1 मिनट इज इक्वल टू 0, क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, चलो कोई बताओ, कल हमने डिस्कस किया था, बोलो। 0 मिनट नहीं होता है इसने भी, 0 मिनट थोड़ी होता है, मिनट तो ली है ना उसने, 1 मिनट लिया है आपने, 0 मिनट क्यों लेके लिखा है इसने भी। चलो फटाफट बताओ क्यों उसका 0 हुआ डिस्प्लेसमेंट, बताओ परी, राइट इन योर चैट बॉक्स। चलो डिस्प्लेसमेंट हम क्या देखते हैं, बोलो, डिस्प्लेसमेंट में क्या हम क्या दिखते हैं, वेरी गुड अनुज, बराबर। फाइनल पॉइंट आप पॉइंट देखते हैं और इनिशियल पॉइंट देखते हैं, तो फाइनल और इनिशियल सेम हो गया, जहां से स्टार्ट किया था वही वापस आ गई है, बराबर। तो दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इज 0, वेरी गुड। नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, तो कितना लिया था उसने, 180 मिनट इन 180 मीटर इन 1 मिनट, राइट। आपको सेकंड में करना है तो आपको यू हैव टू डिवाइड विद 60, मिनट में से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से करोगे ना मल्टीप्लाई, तो बराबर। तो 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी 180 अपॉन 60, तो 3 मीटर पर सेकंड, उसकी एवरेज स्पीड हुई 3 मीटर पर सेकंड।
अभी हम एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, तो उसके लिए हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ उसका 0 अपॉन टाइम टेकन 60 सेकंड, बराबर। तो एवरेज उसका क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गई मीटर पर सेकंड, राइट। तो द एवरेज स्पीड इज ऑफ उषा इज 3 मीटर पर सेकंड एंड हर एवरेज वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड। हमेशा याद रखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है और उसी ओरिजिन प्लेस पे वापस आता है, तब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो at this time your average velocity will be 0. 0 divided by anything you can put 0, बराबर। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो दोनों एग्जांपल में बेटा एग्जैक्टली आपको पता चला है? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड, फाइन फाइन, ओके। So in our next session we will see rate of change of velocity, बराबर। in our next session we will see about it.